رمضان المبارک میں مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت اثرات ظاہر ہونے لگے۔ پیاز کی برآمد پر پابندی لگی تو اس کی قیمت گرنے لگی، ساتھ ہی دیگر سبزیوں کے نرخ بھی کم ہوتے دکھائی دے رہی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی ایک وجہ طلب اور رسد کا فرق ہے، لیکن عوام کی طرف سے ضرورت سے زیادہ خریداری بھی قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں حکومتی اقدامات کے باعث مہنگائی کا طوفان تھمنے لگا۔ حکومتی یقین دہانیوں اور کارروائی کے دعووں کے باوجود ناجائز منافع خور مافیا بھرپور انداز سے سرگرم رہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور انتظامی کمیٹیوں کی ناقص کارکردگی کے باعث پیاز، لیموں، لہسن کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی تو عوام اور میڈیا کے واویلے مچانے پر حکمرانوں کو بھی ہوش آ گیا۔ مارکیٹ میں دستیابی اور قیمت کنٹرول کرنے کی حکومت کی ایکسپورٹ پر پابندی اثر دکھانے لگی۔ پیاز کی برآمد پر پابندی سے بڑھتی قیمتوں کو بریک لگ گئی۔ دکاندار کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے زیادہ خریداری کی وجہ سے مہنگائی بے لگام ہوئی۔ منڈی میں پیاز، لیموں میسر اور قیمتیں کم ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید کمی ہوگی۔ اب قیمت ماشاءاللہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ کل 220 تھا پیاز کا ریٹ، منڈی ریٹ تھا، جو آج کا ریٹ نظر آ رہا ہے 180، 180 روپے کلو، تو 800 کا 5 کلو بنتا ہے، 400 روپے 5 کلو مگر کم ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اور سستا ہوگا۔ شہریوں نے مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اعلیٰ حکام سے کاغذی اور دکھاوے کے کارروائیوں کی بجائے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، ڈوگر سٹی 41، فیصل آباد۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں تمام سبزیاں اور پھل سستے نہیں ہوئے، لیکن کسی حد تک فرق ضرور نظر آ رہا ہے۔ فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں سبزی اور پھل کس بھاؤ فروخت ہوئے، کس چیز کی قیمت کم ہوئی، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے حکومت متحرک۔ فیصل آباد میں چکن کی قیمت 591 روپے کلو پر برقرار، انڈے 2 روپے درجن مہنگے، سبزیوں کی قیمتیں نیچے آنے لگی۔ آلو کچا چھلکا 2 روپے سستا 53 روپے کلو، پیاز درجہ اول 15 روپے سستا ہو کر 235 روپے، ٹماٹر 3 روپے سستے ہو کر 145 روپے، لہسن چائنا 15 روپے سستا 590، لیمو دیسی 15 روپے سستے 265 روپے کلو، مٹر 15 روپے سستے، بھنڈی توری 20 روپے مہنگی ہو کر 310 روپے کلو، مونگرے 15 روپے سستے ہوتے ہیں 140 سے 125 روپے کلو، سیب کالا کلو 330 روپے، سیب گولڈن 200، انار بدانا 650، انار کندھاری 320 روپے کلو پر برقرار۔ اوور ٹیکسنگ میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں مقرر۔ آلو 3، پیاز لہسن 15 اور ادرک 10 روپے کلو تک سستا ہو گیا۔ آلو 52، ٹماٹر 145، پیاز 235، لہسن 590، ادرک 530 روپے کلو، سبز مرچ 300، لیمو 115، کھجور ایرانی 500، امرود 200 روپے فی کلو مقرر کر دیے گئے۔ جنگ میں گراں فروشوں کی منمانیاں جاری، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ آلو کی قیمت میں 1 روپے کی کمی 55 روپے فی کلو، ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 22 روپے کی کمی 133 روپے میں فروخت، پیاز کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ 235 روپے فی کلو، لہسن 600، ادرک 530 روپے فی کلو، سبز مرچ 295، لیمو 125، کھیرا 70، شملہ مرچ 250 روپے فی کلو۔ چنیوٹ کی سبزی منڈی میں قیمتوں میں واضح کمی، آلو 7 روپے کم ہو کر 43 روپے کلو، پیاز 230 سے کم ہو کر 220، ٹماٹر 140 سے کم ہو کر 135، لہسن 600 سے کم ہو کر 570 روپے کلو، ادرک کی قیمت 510 روپے کلو برقرار، گوبھی 10 روپے کمی کے بعد 140 روپے کلو، مٹر 7 روپے کمی کے بعد 72 روپے کلو، سبز مرچ 290 روپے کلو، لیمو 20 روپے کمی کے بعد 100 روپے، شملہ مرچ 240 سے 230 روپے کلو ہو گئی۔ احمد پور سیال میں رمضان کی سوغات، کھجور کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ کھجور کی قیمت 600 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غریب روزہ دار کھجور سے روزہ افطار کرنے سے قاصر ہو گیا۔ حکومتی مشینری نے سبزی پھل کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے تو اجناس مارکیٹ کو آگ لگ گئی۔ شہری دال، بیسن، گھی، چینی کی بڑھتی قیمت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کریانہ اور ہول سیل میں روز بدلتے ریٹ نے روزے داروں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ فیصل آباد میں چاول، دال، دودھ، دہی اور مختلف اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ روزہ دار پریشان۔ بلیک کریانہ سٹور اور ہول سیل مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مہنگائی نے ماہ سیام میں خریداری کرنا مشکل کر دیا ہے۔ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے میں صرف سنت رسول پوری کر سے صرف کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے دالوں کے اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، سبزی کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں، ہم صرف دال بھی نہیں کھا سکتے۔ چنا سفید موٹا 320 روپے کلو، چنا سفید باریک 5 روپے سستا ہو کر 285 سے 280 روپے کلو ہو گیا۔ دال چنا موٹی 25 روپے مہنگی 210 سے 235 روپے پر پہنچ گئی۔ دال ماش دھلی ہوئی 20 روپے مہنگی 500 سے 520 روپے کلو ہو گئی۔ کہاں سے کھائیں؟ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ شہریوں کی دہائی۔ غریب آدمی کے لیے آگے سبزی یا دال ہی ہے نا، وہ بھی 400، 300، 400 روپے کے جی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی وہ دیکھیں
एक दिन की हांडी बनाए 1000 रुपया लग जाता है। महंगाई की मारी अवाम ने हुक्मरानों से महंगाई कम करने और रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। सब्जी, तरकारी या फल जैसे तैसे आपने खरीद ही लिए, अजनास का भी गुजारा कर लिया गया, लेकिन हंडियाँ पकाने के लिए गैस भी दरकार है। और एलपीजी गैस के नर्ख तो इस वक्त से बढ़ते ही जा रहे हैं जब से हुकूमत ने सुई गैस महंगी की है। गरीब के लिए एक वक्त की रोटी मुश्किल तर होती जा रही है। मजीद इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही गैस माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर भर में एलपीजी गैस जायद कीमत में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। 258 रुपए फी किलो वाली गैस 300 से 320 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सिलेंडर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। दुकानदारों का कहना है कि एलपीजी का सरकारी रेट 258 रुपए है, लेकिन इनको 286 रुपए में मिल रही है। 286 रुपए में खरीद कर 258 रुपए में कैसे बेचें? ओगरा ने रेट कीमत कटी 258 रुपए। 258 रुपए ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ 290 रुपए 295 रुपए। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ 300 310 रुपए ਵੇਚਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਲਾंट वाले ने अज तक ना कोई एसीसीटी गया, ना कमिश्नर गया। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर और चाय स्टॉल वाले कहते हैं कि रमजान मुबारक में भी दिन दिहाड़े जायद कीमत वसूल की जा रही है। आला हुकाम सरकारी नरखों में एलपीजी गैस की फराहमी यकीनी बनाए। गैस रह गई है, गैस वाली साइड था 310 रुपए किलो गैस था। 50 रुपए का कप दे के भी सानू बच्चों की रोटी नहीं लभदी पई। 400 कमाया, 310 की गैस डलवा ली है। अब 90 रुपए में क्या घर लेकर जाएं, क्या बच्चों का पेट पालें। इनसे गुजारिश है कि पुलिस इसे कंट्रोल करें। एलपीजी की कीमतों में नाजायज इजाफा पर शहरियों ने आला हुकाम से गैस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और मुतलका अफसरान की नाकस कारकर्दगी का जायजा लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। तोबा टेक्सिंग में निगहबान रमज़ान पैकेज की पैकिंग और डिलीवरी का अमल जारी है। 10 दिनों में 60,000 थैले तैयार और 50% मुस्तहिक घरानों तक पहुँचा दिए गए हैं। टेक्सिंग में निगहबान रमजान पैकेज के थैलों की तैयारी का सिलसिला जारी। 10 रोज के दौरान 60,000 से ज्यादा थैले तैयार किए गए। जिले इंतजामिया की जानिब से 50% बैग मुस्तहिक घरानों में तकसीम कर दिए गए हैं। गरीब लोगों में मजीद तकसीम करने के लिए मजमूई तौर पर 1,32,000 बैग तैयार किए जाएंगे। 10 रोज हो गए हैं ये सामान की जो फूड हैम्पर की पैकिंग करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 50% जो है ना, हमने जो फूड हैम्पर है पूरे ज़िला में वो डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि विद इन 10 डेज, विद इन 8 से 10 डेज जो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। निगहबान रमजान पैकेज के थैलों की तैयारी करते 10 रोज हो गए हैं। 50% निगहबान रमजान पैकेज के थैले तैयार करके इंतजामिया के हवाले किए गए। फूड अथॉरिटी ने राशन के 32 सैंपल इकट्ठे करके सामान को मियारी करार दे दिया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद पीपी 109 की दोबारा गिनती मुकम्मल। लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा की जीत बरकरार। दोबारा गिनती में कामयाबी 4,985 वोटों से हासिल की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में भी PX9 से जफर इकबाल नागरा MPA मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जफर इकबाल नागरा मुसलसल चौथी बार कामयाब हुए थे। हारने वाले PTI के हमात याफ्ता आजाद उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हाफिज अताउल्लाह की दरखास्त पर दोबारा गिनती कराई। दोबारा गिनती में भी लीगी MPA जफर इकबाल नागरा ने कामयाबी समेट ली। जराये के मुताबिक पहले कामयाबी 353 वोटों से मिली थी, जबकि दोबारा गिनती में बढ़ती 4,985 वोटों पर जा पहुंची। लीगी MPA जफर इकबाल नागरा का कहना था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से पोलिंग डे पर ज्यादती हुई थी, जिसका अब अजाला हो गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फंड्स की अदम फराहमी तरक्याती मंसूबों की तकमील के आड़े आने लगी। फैसलाबाद डिवीजन की माली साल 2023-24 की 621 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। अधूरी स्कीमें शहरियों के लिए मसाइल बन गईं। फंड्स की कमी के बायस फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। अधूरी स्कीमें शहरियों के लिए सर दर्द बन गई। माली साल 2023 और 24 की 621 तरक्की स्कीमें ताखीर का शिकार। सूबाई महकमों के तरक्याती कामों की कारकर्दगी SMD पोर्टल पर जारी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से स्कीमों के जारी शुदा फंड की तफसीलात भी जारी कर दी गई। ADB में जारी 621 तरक्याती स्कीमों के फंड्स ऑनलाइन ना हो सके। हेल्थ सेक्टर की 26 से ज्यादा स्कीमों के फंड्स जारी ना हो सके। अलाइड हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल नुसरत फतेह अली खान, THQ जगजुमरा, THQ तांदलेवा, THQ समुंदरी, THQ जड़ेवाला की स्कीमें भी फंड से महरूम रही। GR3 सेफ सिटी मनसूबा, दीगर महकमों को भी फंड्स की फराहमी मुश्किलात। फैसलाबाद की 322, चनियोड़ की 73, टोबा की 85 और जंग की 141 स्कीमें नामकम्मल। फंड्स की अदम फराहमी से सड़कों की तामीर और मरम्मत, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स, सेहत, तालीम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोकल गवर्नमेंट, महकमा हार, वासा, PHA और दीगर महकमों की मुतअद्दिद स्कीमें पर मट्टी फिरने लगी। अधूरे मंसूबे के बाद शहरियों की मुश्किलात बरकरार ही। कैमरा ईमान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।
जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मेयार। मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी, रेडी बानों को हजारों के जुर्माने। फल और सब्जी फरोशों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। मंडियों में रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा। जंग की मंडियों में कीमतें जायद लेकिन जुर्माने परचून मार्केट में ही किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां छोटे दुकानदारों तक महदूद होकर रह गईं। जुर्मानों के खिलाफ रेडी लगाने वाले फल और सब्जी फरोशों का एहतजाज। मंडी से महंगे दामों फल और सब्जियां खरीद कर लाते हैं। रेट लिस्ट पर दर्ज कीमतों पर मंडी से भी अशिया नहीं मिलती। दुकानदार फट पड़े, बोले चंद सौ कमाने वाले दुकानदारों को हजारों रुपए के जुर्माने किए जाते हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जानिब से आड़तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो मंडी के रेट लिस्ट है ना वो कम मतलब ज़्यादा है, जो हमको रेट दे रहे हैं वो कम है। वो थोक रेट जो है वो परचून पे भी नहीं, किसी रेडी वाले को भी उस तरह का रेट नहीं मिल रहा जिस तरह का मंडी में रेट है। अगर फ़र्ज़ करें मंडी में 140 रुपये टमाटर है ना, तो रेडी बान को 110 रुपये रेट दे रहे हैं मार्केट कमेटी वाले। इसी पे साथ साथ एहतजाज है, एहतजाज भी नहीं है हमारी से कि डिप्टी कमिश्नर से इल्तिजा है कि वो जितने भी रेडी बान हैं इनका ख्याल रखें। माह रमज़ान का महीना, इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने रोज़ी रोटी कमानी है। ताजरों ने जिला इंतजामिया से मंडियों में रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में कचरे के ढेर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का मुंह चढ़ाने लगे। मिल्लत रोड पर उठने वाला ताफुन बीमारियां फैलाने लगा। पन्नू रोड और जड़ावाला रोड की भी हालत ना बदल सकी। फैसलाबाद में गंदगी के अंबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मिलत रोड में शाहराब गंदगी के ढेर से इलाका मकीन परेशान, बीमारियां फैलने का खदशा। बोले ताफुन और बू ने सांस लेना मुश्किल कर दी है। अमला नजरअंदाज है, अमला नजर आता है, ना ही सफाई के लिए कोई इकदाम। बार बार दरखास्तों के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लोग सुट जाते हैं, इसे चुक्या नहीं जाता गंद, बेबाक गंदगी बहुत फैली हुई, लोग बीमार होंगे पे ने। ठीक है, गाँव गर्मी है, डेंगू मच्छर की भी खतरा है थे। ठीक है बाजी, मेहरबानी। सड़कों फुटपाथ की खस्ता हाली भी राहगीरों के लिए दर्देसर। कोहिनूर चौक से मलिका फुटपाथ शदीद टूट फूट का शिकार, स्लेबे तक गायब हो गई। नशे के आदि अफराद दिन दिहाड़े स्लेबे तोड़कर सरिया निकालने में मसरूफ नजर आते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। राहगीर जान खतरे में डालकर मसरूफ तरीन रोड पर चलने पर मजबूर है। रही सही कसर कूड़े के ढेर ने निकाल दी। तकरीबन 16-17 साल हो गए यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ। ये उससे तब बना था, उसके बाद ये बना ही नहीं। डबल रोड मंजूर किया लेकिन उसके बाद कोई ना आया ना कोई गया। इस सदर बाजार में इनका पॉइंट है ये। पन्नू चौक गुलाम अहमदाबाद रोड अरसादराज से खस्ताहाली का शिकार। धूल मिट्टी ने राहगीरों और इलाका मकीनों की जिंदगी दोभर कर दी। मैं जी मरियम नवाज से गुजारिश करता हूँ, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, इसका कोई फैसला नहीं कर रहा पूरी दुनिया से। जड़ा भी आता है तस्वीरें लेके चले जाता है, ठीक है ना, कोई काम नहीं हो रहा। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर ने सफाई के दावों की कलई खोल दी। गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन ने सनती शहर की खूबसूरती को निगल लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ हसीन अकबी, सिटी 41 फैसलाबाद।